Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, shall we start our class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, when is your midterm exam for BBC 101? 29. 29. Okay. First half or second half? Second half. Second half. Okay. So, today I'm going to start enzyme chapter, and till enzyme your midterm portion will be there. Okay. Carbohydrate, protein, enzyme, and then starting one that water, and including Bhutia portion. Okay. So, we'll start today with the enzymes. So, what are enzymes? Enzyme is a bile catalyst. Okay, good. What else we can say about enzyme? Sorry? Someone wants to join, please allow. No, nobody wants to join. I have no notification. See, already it's 10:10. Now I will not allow anybody. I'm giving almost 15 minutes time to you people to join, but it's still not coming on time. Okay. So, my screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay, so as you all know that enzymes are nothing but they are biocatalysts. Okay. So what is meant by the term biocatalysis? What are these catalysts first? You tell. Maintain yourself. Maintain yourself Means Overall process. yes, very good. Means it will not manipulation of all the food use up नहीं हो जाता. It is not being consumed during the reaction. So that's what important characteristic of any catalyst. Okay, so catalyst you know that enhances the rate of reaction. So same thing when it happens in the biological system, that we call it as a biocatalyst. And enzymes are nothing but they are biocatalysts. And it is mostly made up of protein, except few, only very few exceptional, that is the catalytic RNA. So when we see the composition or structure of amino acid, protein enzymes, as I know that enzymes are made up of protein. So proteins are made up of amino acid residues only. But there are different types of enzymes. Some enzymes are having other than amino acid also. So that type of enzymes we call it as a conjugated enzymes, because they will be having protein as well as some other part also. So that part, other part, and the proteinous part, we call it as a cofactor. So as using the term holoenzyme for enzyme, which will include apoenzyme, that is the protein part, and the cofactor part. So now the question comes that what is the difference between this cofactor, coenzyme, and prosthetic group? Coenzyme is the organic compound and cofactor is inorganic. And ma'am, in coenzyme, if loosely bound and if tightly bound, that is prosthetic group. Yes, very good. So that is the difference between this cofactor, coenzyme, and prosthetic group. Okay. So
it is somewhat confusing. That's why I wanted to clear it here. So cofactors are the other than anything than protein part that is called cofactor, whether it is a coenzyme or prosthetic group. Okay, so whenever it is on an inorganic ion, that we call it as a cofactor simply. But if it is an organic compound or metallo-organic molecule, then it is coenzyme. Then again, that how this organic or metallo-organic compound is related with the enzyme, whether it is loosely bound or tightly, or in the sense we can say that permanently bound. So whatever it is permanently or tightly bound, that is we calling as a prosthetic group. So is it clear now, difference between coenzyme and prosthetic group? Yes, ma'am. Okay, so this question is mostly asked in true false question, and many of you are doing mistake in answering this question. So just remember P for permanently bound or pakad ke rakhta hai, like that, tightly bound. In that way, if you remember, you will be able to remember. Prosthetic groups are permanently bound or it is tightly bound, whereas coenzymes are loosely bound. So I have given some list of cofactors here that you have to remember. Okay, so at least there are many cofactors and coenzymes are there, but at least these are the most important one or most frequent one, we can say, that which comes in our study, so that you should know, especially this coenzymes. Whenever there is an amino transfer, like a transamination reaction is there this pyridoxal phosphate will be there. So whenever there is electron transport is there, I can ask directly question like that, write the name of coenzyme which is involved in the amino group transfer or transamination reaction, or I can ask write the name of coenzyme which is involved in the CO2 decarboxylation. Okay, so that time you have to write biositins directly, or SI group transfer, so that time coenzyme only, or directly I can ask the name of ion, and I can ask you like that, name the enzyme in which this is Mn2 plus is a cofactor. So this table should be remembered by everyone. Many questions will be there, at least one or two questions will be there in midterm exam from this portion. Okay. So next is the nomenclature of enzymes, how these enzymes are named. So there is the different naming systems are there. First one is that is the trivial name. So trivial name is like our name, pet name or nickname, whatever in family, everyone is having some kind of nickname or pet name. So that is there is no relation with the where it is the source, what is your like in India we talk about caste system and everything, it is there is no relation. Same thing whenever we talk about trivial name, so there is no relation with the source, function and how the reaction it is catalyzing. It's simply like means who is discovering this enzyme, they are giving some name, but that was creating some kind of confusion, because you know that trypsin. So somebody discovered in India and he is knowing, giving the name of trypsin. The same enzyme somebody else is discovering in other place and they will give the some other name. So that was very confusing. So remove that confusion. International Union of Enzyme, they have given some systematic name. So in that systematic name, two parts were there. First part was the substrate of the enzyme and second part was the reaction being catalyzed, and it is always ending with the suffix ASE, ase. So example is like lactate dehydrogenase. So this lactate is your substrate and dehydrogenation is the reaction. So dehydrogenation reaction is there, so last they are adding ase. But this was also again very confusing, because lactate is okay substrate, but same substrate different types of enzymes are acting again in dehydrogenase. What type of means reagent it is using, whether it is using as a FAD, NAD, means कौन सा cofactor ये use कर रहे थे, उस पे भी confusion create होता था, वो explain नहीं कर पाता था ये. So that's why in 1961 Enzyme Commission came up and they along with the IUPC, this International Union of Biochemistry and Molecular, they together given the name that is called EC number or Enzyme Commission number. Okay, तो EC number में क्या होता है, it is having 4 digits. Here I have written like ABCD, but actually it is the numbers 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 digit होते हैं उसमें. तो first क्या क्या जितने भी enzymes थे, that they classified into 6 groups. So what are those 6 classes of enzyme? O3, That is good, but full form you have to tell. oxidoreductase, dehydrogenase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase and ligase. तो ये तो 7 हो जा रहा है. ऑक्सीडोरेडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज दोनों सेम है.
नहीं, उसका नाम ऑक्सीडोरिडक्टेज है, डिहाइड्रोजिनेज नहीं है। स्टैंडर्ड नेम इज ऑक्सीडोरिडक्टेज ओनली। Okay, Okay, ma'am. in that dehydrogenase is a part. Okay. Yes, it's very good. So always when we talk about this enzyme classification, always you have to remember in this sequence only. Oxidoreductase 1 means always oxidoreductase 2 transferases 3. अगर आप ये सीक्वेंस आगे पीछे लिखते हो कि अगर सपोज आपको मैंने पूछा है कि राइट द नेम ऑफ 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम एंड यू आर राइटिंग वन एज लाइगेज, तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर से एंजाइम को हमेशा वी आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ द 4 डिजिट ओनली। ओके, EC 1.134, तो 1 दैट मीन्स इट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज। अगर आपने 1 को लाइगेज बना दिया तो क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी पूछा जाता है वेदर इट इज शॉर्ट आंसर, फुल मार्क्स आंसर, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है जो इन्होंने कोड बताया ओथलिल, दैट अगर आप वो याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना कोड बनाकर याद रखो, बट इट शुड बी ऑलवेज इन दिस सीक्वेंस ओनली। 1 means always oxidoreductase, 2 means transferases, 3 means hydrolases, lysases, isomerase and ligase. Now the classification क्या, that is based on the reaction being catalyzed, किस टाइप के रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप के जितने भी रिएक्शंस होते हैं दैट ऑल कम्स अंडर ऑक्सीडोरिडक्टेज, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डिहाइड्रोजन इज द पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, दैट इज नॉट द मेन क्लास, दैट इज द सब क्लास। तो यहाँ पे जो हमने बात किया कि इट इज 4 डिजिट्स आर देयर, so first is called class of the enzyme, so enzymes are classified into 6 classes. Okay, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड डिजिट होता है, दैट इज द सब क्लास। सब क्लास इज दैट एज आई एम सेइंग दैट इट इज द ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज मतलब क्या होगा कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, लेकिन वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दैट इज इंडिकेटेड बाय द सेकेंड नंबर, दैट इज कॉल्ड सब क्लास, कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। देन थर्ड डिजिट इट इज कॉल्ड सब क्लास, मतलब कि सपोज सेकंड से आपको पता चल गया ओके इट इज ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीडेशन में इसने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, लाइक वेदर इट इज यूज एज FAD और NADH और ऑक्सीजन यूज किया, क्या यूज करके उसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सब क्लास। और लास्ट वन इज द फोर्थ इज द सब क्लास, तो दैट मोस्टली एक्सप्लेन अबाउट द सबस्ट्रेट एंड ऑल डिफरेंट, जो बाकी चीजें बच जाती है उस मतलब उसके अलावा भी अगर उसको डिस्टिंग्विश करना है, बट स्टार्टिंग फर्स्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द क्लास ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडोरिडक्टेज मींस व्हेनेवर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज देयर, सो दैट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज। सेकंड इज योर ट्रांसफेरेजेस, मींस की ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप? किस टाइप के रिएक्शन को हम ट्रांसफेरेजेस रिएक्शन में कंसीडर करेंगे? जस्ट गिव एन एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे? मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे मतलब एक सबस्ट्रेट का फंक्शनल ग्रुप दूसरे सबस्ट्रेट के साथ ट्रांसफर हो जाता है ना, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। It's not always क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल हेक्सोकाइनेज एंजाइम कहाँ पे यूज होता है, किसी को आइडिया है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में। राइट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज में जस्ट आपको क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर ग्रुप, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक डिस्प्लेसमेंट के एक जाएगा और दूसरा आएगा ही उसमें। ओके, सो एग्जैक्टली दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसफर रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट नॉट एग्जैक्टली द, मतलब किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करना है, वेदर इट इज अल्कोहलिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर करते हैं, तो इस टाइप के जो रिएक्शंस कैटेलाइज करेगा दोज ऑल कम्स अंडर ट्रांसफेरेजेस। नेक्स्ट इज हाइड्रोलेसिस। तो हाइड्रोलेसिस क्या हो जाएंगे? ब्रेकिंग ऑफ वाटर। ब्रेकिंग ऑफ वाटर। सो ब्रेकिंग ऑफ वाटर मींस, और फिर एक्सप्लेन करो इसको। दैट इज हाइड्रोलिसिस। कोई भी ईस्टर हो या ईथर हो या पेप्टाइड हो, उसका हाइड्रोलिसिस मेनली करना ही हाइड्रोलाइजन। यस, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन कम्स अंडर हाइड्रोलिसिस। ओके,
क्योंकि आप यहाँ पे क्या देखोगे, लाइगेजेस का काम भी वही हो रहा है कि एडिशन टू डबल बॉन्ड, इन दिस केस आल्सो बॉन्ड इज ब्रेकिंग, बट डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ लाइगेजेस देयर इज नो वाटर, बट इन केस ऑफ हाइड्रोलाइसिस विद हेल्प ऑफ वाटर, मतलब वाटर के हाइड्रोलाइसिस के साथ बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी वहाँ पे रिएक्शंस हो रहा है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन कम अंडर हाइड्रोलाइसिस. नेक्स्ट इज लाइगेजेस. लाइगेजेस द एडिशन टू द डबल बॉन्ड, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो मोस्टली जितने भी टाइप के रिएक्शन होते हैं जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, दैट कम्स अंडर लाइगेजेस. आइसोमेरेसिस हो गया, जहाँ पे भी आइसोमेरिज्म हो, वेदर इट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और इट इज ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, कोई भी आइसोमेरिज्म टाइप का हो जाए. तो इसका एक एग्जांपल बताओ आइसोमेरिज्म रिएक्शन का, ग्लाइकोलिसिस से एक एग्जांपल बताओ. मैम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है आइसोमेरेज वहाँ पे यूज होता है. वेरी वेरी गुड. वहाँ पे आप देख रहे हो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कैसा दोनों एक दूसरे के आइसोमर है. वहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज आइसोमेरिक रिएक्शन. यहाँ ओके. लाइगेसेस क्या है, फॉर्मेशन, but exactly it's not always at the help of it. होता है तो just बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहाँ पे जो टेंशन इन्वॉल्व होते हैं, दैट लाइगेसेस. तो ये क्लासिफिकेशन सभी को ओके. सो नेक्स्ट हमें एक पूछना चाहूँगा कि भी आपको लगा कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन लिखना है, तो मैं ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा नंबर लिखा और रिडक्शन उसके लिए कौन सा नंबर लिखा. ये आपका 1.1 है, तो इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे एक्टिव ग्रुप है, तो ये सेकंड ग्रुप है, वो करता है क्या इस पे ये कर रहा है. तो इतना डिटेल में आप लोग को अभी समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको याद रखना है कि 1 मतलब कि दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ओके, इसमें आप देख रहे हो ना कि 1.1 है तो एक्टिंग ऑन द COH ग्रुप ऑफ डोनर है, फिर 1.1 है तो NAD और NADP एज एक्सेप्टर है, 0.2 है तो साइटोक्रोम यूज कर रहा है. तो इस तरह से इसमें जब आप डिटेल में देखिएगा तो ये सारा चीजें टोटल यहाँ पे 20 सब क्लास है, तो उससे वो पता चल जाता है कि आपका यहाँ पे किसको यूज कर रहा है और एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. वो तो उतना डिटेल आपको अब याद नहीं रखना है, जस्ट आपको 1 याद रखना है कि 1 मीन्स इट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज. ओके. ट्रांसफेरेजेस है, ट्रांसफेरेजेस में भी है कि ट्रांसफरिंग 1 कार्बन ग्रुप है, whether it is transferring the aldehyde or ketone group. तो ये to explain you I have given this list, you need not to remember this list. आपको केवल फर्स्ट वाला टेबल याद रखना है कि 1 मीन्स क्या, 2 मीन्स क्या होता है, उतने केवल याद रखना है. और बाकी जस्ट समझ लेना है कि मतलब सब क्लास क्या होता है और सब क्लास क्या इंडिकेट करता है. तो these are the list of different hydrolases हो गया, similarly lysases है, isomerase है ये, और ligases यहाँ पे. अब ये कुछ चीजें आप लोग को समझना है कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा समझना है. जब हम एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल की बात करते हैं तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझना है. तो क्या होता है, कौन कौन सा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के, कितने लॉज हैं? 3 लॉस. तो क्या क्या लॉज हैं बताइए. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? If two bodies are connected, then the enthalpy of then enthalpy of the both body are same. ये जीरो था. फर्स्ट लॉ Total energy in the closed system is neither loss or gain. है. और सेकंड किसी भी क्लोज सिस्टम का एंट्रोपी में हमेशा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहता है. ओके गुड. तो ये इसमें जो मोस्टली जो क्या कहते हैं आपको फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ का इसका बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है. तो फर्स्ट लॉ में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी इन ए क्लोज सिस्टम इज नाइदर लॉस्ट और गेन, मतलब क्रिएटेड, इट इज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम. तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग को पता है कि एक हिल पे अगर कोई एप्पल रखा हुआ है दैट इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, तो हिल पे जब था तो दैट विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी,
and while falling from the height, its potential energy is converted into kinetic energy. So that is example. Second law of thermodynamics says that is the entropy of system in a closed system always increases. Okay, तो entropy क्या होता है, पहले ये explain करो आप. डिग्री ऑफ रैंडमनेस. Yes, entropy is degree of randomness. तो कोई भी सिस्टम क्या होता है, उसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज करता रहता है. सो दैट वी कॉल इट एज अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इसको हम लोग और भी, इससे रिलेटेड है आपका गिब्स फ्री एनर्जी है. तो कोई भी सिस्टम में जो एनर्जी अवेलेबल होता है दैट इज टू डू सम यूजफुल वर्क, दैट वी कॉल इट एज अ गिब्स फ्री एनर्जी. तो इसका आपको पता ही है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस, और फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी एनर्जी शुड ऑलवेज इंक्रीज. ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें ये आप लोग देख लेना. देन क्वेश्चन कम्स दैट हमने जैसे बोला कि एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. सो इट इज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इसलिए ये होता है. तो व्हाट इज दिस एक्टिवेशन एनर्जी? It is the threshold between reactant and product. It is required Okay. to start the work. Yes, it is the minimum that threshold energy which is required to start a work or that reactant or product जो भी आप बता रहे हो. So that is called the gap होता है दोनों के बीच में, that we call it as the activation energy. Okay. तो एंजाइम क्या करता है, इसी को कम कर देता है. तो इसका एक एग्जांपल है कि दिस मच ऑफ एनर्जी चाहिए होता है इस करने के लिए, लेकिन एंजाइम क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है. तो दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस हियर. तो ये एंजाइम जो रिएक्शन को कम कैसे करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करता है, ये क्वेश्चन आता है. तो है आप लोग को आइडिया कैसे कम करता है एंजाइम, ऐसा क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है? ये बाइंडिंग एंट्रोपी बढ़ा देता है सबस्ट्रेट का, जिसके कारण जो है ना रेंडमनेस ज़्यादा होता है और सबस्ट्रेट एक दूसरे से ज़्यादा कोलाइड करते हैं. एंड देन आफ्टर कोलिजन जो प्रोडक्ट बन जाता है. और एक स्ट्रेन थ्योरी है, उसमें जो होता है ना मैम, वो जो सबस्ट्रेट जहाँ पे जाके एक्टिवेशन साइट पे जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट गिरते हैं, वहाँ पे स्ट्रेन क्रिएट कर देता है, जिसके कारण भी प्रोडक्ट बन जाता है. ओके गुड. ये जो एंट्रोपी वाली बात बोल रहे हो आप, वो उसका उल्टा बोल रहे हो. एक्चुअली देयर आर टू कंसेप्ट, वन इज कॉल्ड एंट्रोपी थ्योरी एंड अनदर वन इज द स्ट्रेन थ्योरी. तो एंट्रोपी थ्योरी के अनुसार क्या कहते हैं कि जब आपका यू नो दैट एंजाइम का जो भी रिएक्शन होता है दैट इज हैपनिंग एट एक्टिव साइट ओनली, राइट. ये कहीं पे भी नहीं होता है, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ओनली, और वहीं पे ये रिएक्शन होता है. तो होता क्या है कि जब भी एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, देयर एंट्रोपी इज मोर, क्योंकि उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, इतना बड़ा स्पेस उनको पूरा मिला हुआ है यहाँ वहाँ घूमने को और एक दूसरे से रिएक्ट करने को. बट व्हेनेवर एंजाइम इज देयर सो दे आर कन्फाइंड टू स्मॉलर स्पेस. ये स्मॉल स्पेस में कन्फाइंड हो जाते हैं, तो यहाँ एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है. तो ऑब्वियसली जब वो स्मॉलर स्पेस में कन्फाइंड होगा तो देयर चांसेस ऑफ कोलिजन विल बी मोर, राइट. किस केस में चांसेस ऑफ कोलिजन मोर होगा, वेदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम? प्रेजेंस राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी इफेक्ट. बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द एंट्रोपी यहाँ पे चांसेस ऑफ कोलिजन मोर हो जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज फॉर्मिंग, मतलब क्या कहते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. फर्स्ट थ्योरी है. दूसरा थ्योरी ये कहता है कि स्ट्रेन इफेक्ट. स्ट्रेन इफेक्ट इन द सेंस कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं तो यू नो एंजाइम में दीज आर द प्रोटीन्स ओनली, तो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स है. तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ बाइंडिंग विद द प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग. यहाँ पे मान लो सबस्ट्रेट में भी कोई दूसरा एमिनो सबस्ट्रेट भी हो सकता है कि कुछ इसमें चार्ज हो या फिर किसी टाइप का पोलर ग्रुप हो वहाँ पे. उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम और इनके बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग एंड दैट बॉन्ड दे बोथ आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ स्ट्रेन. सबस्ट्रेट के जो ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया था, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, दैट इज हैविंग सम काइंड ऑफ स्टेट. तो वो क्या कहते हैं, स्ट्रेन और ट्रांजिशन स्टेट. जो ट्रांजिशन स्टेट बना था उसमें बहुत प्रेशर होता है. तो दैट्स हाउ ये क्या करता है, सोचता है कि जल्दी से जल्दी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए ताकि वो स्ट्रेन को अपना रिड्यूस कर सके. तो इस प्रोसीजर में वो मतलब क्या क्या प्रोडक्ट बन जाता है. तो इस स्ट्रेन को एक्सप्लेन कैसे कहते हैं, दैट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस बाइंडिंग एनर्जी कांसेप्ट.
कि जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो देयर आर सम काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर एंड बिकॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन सम काइंड ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, सो दैट एनर्जी वी कॉल इट एज अ बाइंडिंग एनर्जी। तो वो एनर्जी को यूज करके वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया ऑलमोस्ट 3 to 30 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सिंगल वीक इंटरेक्शन। एक सिंगल वीक इंटरेक्शन बॉन्ड्स, क्या क्या बॉन्ड्स होते हैं आपके वीक इंटरेक्शन बॉन्ड्स, कौन कौन करेंगे जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्बिनेशन होगा? वंडरवॉल, यस, और हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, सो वैंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, डिफरेंट टाइप्स के जो इंटरेक्शंस बनते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी ओनली यूज्ड फॉर द रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद ये मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, आई थिंक इससे आप सब लोग फैमिलियर है। देयर आर टू मॉडल्स, वन इज लॉक एंड की मॉडल एंड वन इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल्स? इन लोकेंट की मॉडल जो एंजाइम में जो एक्टिव साइट है वो एक स्पेसिफिक शेप में होती है। ओके, इन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में लॉक एंड की में जो होता है रिजिड शेप का होता है और इंड्यूस्ड में जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जिस कारण से इसे मैक्सिमाइज कर देता है इसके प्रोडक्टिविटी को। ओके, गुड। हाँ, तो लॉक एंड की में जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि पर्टिकुलर लॉक के पर्टिकुलर की होता है, तो सेम चीज क्या था कि एमिल फिशर ने दिया था इस मॉडल को। अकॉर्डिंग टू हिम ओनली सबस्ट्रेट विद द मैचिंग शेप कैन फिट। जैसे कि यहाँ पे आपका ये एंजाइम है विच एक्टिव साइट इसका ये है ट्रायंगुलर शेप में, तो ओनली ट्रायंगुलर टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कैन फिक्स इन दिस, और इसी में ये मतलब फिक्स करेगा देन प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड। ओके, सो दिस वाज द लॉक एंड की मॉडल की मतलब पर्टिकुलर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, लाइक बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बट सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री टू द एस कॉम्प्लेक्स टू द एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी नहीं है। सबस्ट्रेट का एस कॉम्प्लेक्स बनता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है। तो दैट्स व्हाई कि जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो एक्टिव साइट क्या होता है, दैट इज इंड्यूस्ड टू फिट अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। जैसे कि यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर था, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट ट्रायंगुलर शेप में आया तो ये इंड्यूस हो गया टू फिट इनटू द ट्रायंगुलर शेप, तो ये भी ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल कि जब वो सबस्ट्रेट बाइंड करता है देन ओनली एक्टिव साइट इज चेंजिंग इट्स कन्फर्मेशन एंड इट इज एडजस्टिंग विद द सबस्ट्रेट टू मैक्सिमाइज द फिट, और फिट को मैक्सिमाइज कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। So out of these two model, induced fit model is more accepted because according to this model, substrate enzyme can have greater number of substrate. But whereas according to lock and key model क्या होगा कि इसमें बहुत limited number of substrate only enzyme can catalyze, जो which is not possible in real situation. Okay, then coming to the catalysis. तो कैटालिसिस मतलब जो कैटालिसिस रिएक्शन कर रहा है दैट इज कॉल्ड कैटालिसिस। तो कैटालिसिस कैन बी ऑफ 3 टाइप, कोवेलेंट कैटालिसिस, देन एसिड बेस कैटालिसिस एंड मेटल एल कैटालिसिस। तो कोवेलेंट कैटालिसिस क्या होता है कि इन दिस केस जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो होता है वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ईएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सम काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो भी कोवेलेंट कैटालिसिस टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। वेरेज इन केस ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस क्या होगा कि उसमें H प्लस या OH माइनस बनेगा और बिकॉज ऑफ दैट ओनली न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और उसकी वजह से रिएक्शन होता है। और जो मेटल आयन होते हैं उसमें क्या होगा कि मेटल आयन आपका हेल्प करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको कि कोफैक्टर की जरूरत होती है, बट कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई सब एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर?
बाइंड करने के लिए, एक्टिव साइट बाइंड होने के लिए। ओके, और कुछ रीजन बताओ। यस यू आर राइट, बाइंड करने के लिए, लेकिन हाउ, मतलब और थोड़ा इसकी डिटेल में बात करें तो थ्योरी के अनुसार भी कैसे बताइए। एलोस्टेरिक साइट का मैंने इंजॉयमेंट जिसके कारण इसमें कंफर्मेशन चेंज आ जाता है, कोई फैक्टर उससे बाउंड हो, तो जैसे कि एसोसिएट को जोड़ने प्रोडक्ट बनाने में मदद मिलती हो। फिर सारे एंजाइम की जरूरत पड़ता है, कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ता है। मैम उनके पास बाइंडिंग साइट नहीं होता होगा, जैसे बाइंडिंग साइट कैटायन बना के एनाइन के साथ जिससे जुड़ते होंगे, सबके पास नहीं होता होगा इसलिए। राइट, कुछ हद तक आप सही बता रहे हो, क्योंकि अभी तक जो आप लोग जितने मोस्टली एंजाइम्स क्या होते हैं मेनली उनके मैम पास बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिसमें कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप देता है, कुछ भी आयन हो जिससे कि प्लस माइनस फॉर्मेशन होता है। यस, हाँ सही बता रहे हो। उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा बस मैं करेक्शन करना चाहती हूँ कि हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, तो आपने क्या देखा था कि एमिनो एसिड्स में मोस्टली जो पोलर होते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो उसमें क्या होता है, दे विल बी हैविंग द नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या होते हैं कि मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह इजिली काम कर सकते हैं। ओके, बट वैसे रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करना होता है, तो जैसा कि जो एमिनो एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोफाइल, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर पाते, तो वैसे एमिनो रिएक्शंस या फिर एंजाइम्स जहाँ पे कि मोड ऑफ एक्शन इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, वहाँ पे क्या होता है कि मेटल आयन की जरूरत पड़ती है। तो मेटल आयंस कैन इजीली फॉर्म कैटायन और कोऑर्डिनेशन, जो कंपाउंड आप बात कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, इजीली दे कैन हैव कैटायंस, और जब कैटायंस होगा तो दे कैन वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो वो सारी रिएक्शन जहाँ पे कि मोड ऑफ एक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट टाइप ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन और एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो ये समझ में आ गया। कैटालिसिस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, कोवेलेंट कैटालिसिस, एसिड बेस कैटालिसिस एंड मेटल आयन। तो कोवेलेंट में देखा आपने, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है एसिड बेस में, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और मेटल आयन कैटालिसिस में क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बनकर वो या फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाकर इस तरह से वो रिएक्शन को कैटालिसिस में हेल्प करते हैं। ओके, देन एंजाइम स्पेसिफिसिटी की मतलब हर एंजाइम जो होता है उसका पर्टिकुलर ग्रुप होता है, उसके लिए स्पेसिफिक होता है। तो फ्यू एंजाइम्स आर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक, मतलब कि वो पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन, जो कि हम लॉक एंड की मॉडल की बात कर रहे थे उस टाइप से ही होता है कि वो पर्टिकुलरली दैट रिएक्शन ओनली दैट विल कैटालाइज। बट वेयर एज सम एंजाइम्स आर हैविंग ग्रुप स्पेसिफिक। ग्रुप स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि वेरेबल दिस ग्लाइकोसिडिक 1,4 बॉन्डिंग विल बी होगा, जितने भी डाइसैकेराइड्स होंगे जिसमें कि अल्फा 1,4 बॉन्डिंग होगा, तो वो सारे टाइप के वो क्लीवेज करेगा। ओके, उसी तरह होता है कि मतलब जितने भी वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन होंगे जहाँ पे एफएडी यूज हो रहा है, वो सारे डिहाइड्रोजनेज में वो काम करेगा। तो दैट टाइप ऑफ एंजाइम्स कम अंडर ग्रुप स्पेसिफिक। उसके बाद ऑप्टिकल स्पेसिफिक है, तो ऑप्टिकल मतलब कि दे विल कैटलाइज ओनली एल टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब लिवो टाइप ऑफ रिएक्शन और डेक्स्ट्रो टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये 3 टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी होते हैं एंजाइम, दैट इज एब्सोल्यूट ग्रुप एंड ऑप्टिकल। नेक्स्ट कमिंग टू द एंजाइम काइनेटिक्स। हाँ, एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म काइनेटिक्स? मतलब रेट ऑफ जहाँ पे भी काइनेटिक्स वर्ड होता है दैट मीन्स कि समथिंग इज इन मोशन और वेलोसिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल, तो जब भी कुछ मोशन या वेलोसिटी की बात हो रही है तो दैट कम्स अंडर काइनेटिक्स। तो यू नो एंजाइम्स आर आल्सो दे आर मतलब रेट को रिएक्शन इंक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स विद दिस रेट ऑफ रिएक्शन दैट कम्स अंडर एंजाइम काइनेटिक्स। तो एंजाइम काइनेटिक्स जो था सबसे पहले निकोलस मेंटन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया था, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दिस मैक्सवेल्स कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ओके, तो एक किस्म का डेरिवेशन भी है, तो वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू।
लेकिन इतना आप लोग को याद रखना है कि मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन क्या होता है. So why we are writing this as in the under this bracket type? कंसंट्रेशन है ना. Right. Since we are talking about the concentration, substrate concentration, तो हम लोग इसको एक ब्रैकेट के अंदर में डालते हैं. ओके, व्हाट इज दिस वी मैक्स? मैक्सिमम वेलोसिटी. सैचुरेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है? सैचुरेशन एंजाइम में. और एक्सप्लेन करो. सैचुरेशन ऑफ एंजाइम मतलब मैम जितना एंजाइम प्रेजेंट है वो टोटल एंजाइम यदि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर ले वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा. yes. तो यहाँ पे जैसे ग्राफ से क्लियर है कि जब ये सबस्ट्रेट मान लो हम यहाँ पे देते हैं और वेलोसिटी को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, एज वी आर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, इट अटेन्स टू सम पर्टिकुलर वेलोसिटी एंड दैट इट बिकम्स द कांस्टेंट. So what is the maximum velocity it has attained? That is called maximum velocity. So why this is happening कि constant हो जाता है, तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी enzymes होते हैं उसके active side क्या होंगे कि substrate से saturated हो जाएंगे. तो आप जब once all enzymes are saturated with the substrate, however quantity of substrate you are increasing, the rate of reaction will not increase. So this velocity we call it as maximum velocity. और v0 दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि इस यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दैट वी कैन कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला, एंड दिस km इज नथिंग बट इट इज अ कांस्टेंट. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस km? मोलारिटी. ओके, सही बता रही है. और बोलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ km? मोल पर लीटर मैडम. Mole per liter, yes. Actually, that is the unit of concentration only. That is moles per liter. Okay. अभी molarity जो भी आप कह सकते हैं. So if somebody will you ask you what is the unit of km, so it is the unit of substrate only. तो इस इक्वेशन से भी आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे v0 का यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर सेकेंड. मीटर पर सेकंड. यस, इट इज मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड यहाँ पे. तो यहाँ पे आपका मीटर पर सेकेंड है. वी मैक्स इज आल्सो मीटर पर सेकेंड इनटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, एंड दिस इज प्लस. तो ये दोनों प्लस प्लस कैंसिल होगा, तो फाइनली राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट सेम हो जाएगा. ओके. तो जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिफाइन km? km को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? It is the substrate velocity becomes half. Yes. So it is the substrate concentration at which the maximum velocity becomes the half of initial velocity. तो इसका कहने का क्या मतलब है कि substrate concentration, तो km को हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज कर देंगे. इट इज द substrate concentration, मतलब इसको भी हम लोग s यहाँ पे लिख देते हैं. तो आपका इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा? v0 इक्वल टू v max इंटू s डिवाइडेड बाई 2s हो जाएगा. तो 2s हो जाएगा क्योंकि s प्लस s मिलकर 2s हो जाएगा. तो 2s कैंसिल, v0 will be equal to vmax by half. So that's why we are defining km is the substrate concentration at which initial velocity become half of the maximum velocity. Okay. तो इसको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे थी, तो जहाँ पे ये हाफ हो जाता है दैट वी आर एक्सप्रेसिंग एज द km. तो ये आपका km यहाँ पे हो रहा है. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस km? इससे पता चलता है कि कौन सा एंजाइम कितना एक्टिव है और कितना फास्ट वो रिएक्ट करता है. ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच का एफिनिटी को बताता है. Yes. So this is mostly explained. एक मिनट, हाँ. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होता है ये दो चीज को एक्सप्लेन करता है कि मतलब वही कितना फास्ट और रिएक्शन होगा और एफिनिटी कितना होगा. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का क्या मतलब हो गया? एफिनिटी बढ़ेगा तो ये घटेगा. एफिनिटी बढ़ेगा तो घटेगा. यस, मतलब कि हायर द km वैल्यू लोअर विल बी द एफिनिटी. km वैल्यू जितना ज्यादा हो जाएगा दैट मींस कि
एफिनिटी उतना कम है, तो क्यों इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्या ये कहने को तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन इसका मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? बोल सकते हैं कि केएम वैल्यू जितना ज़्यादा होगा कि इसका मतलब वो एंजाइम उतना ही अच्छा है, वो उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यदि एफिनिटी होगा तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएगा, जिससे फिर कोई भी बायो प्रोसेस जो होगा वो होने में लेट लगेगी। तो ये तो आप उल्टा बोल रहे हो कि एफिनिटी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, इसका कहने का मतलब हुआ आपका? मैम आपने जैसे बोला कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जैसे केम इंक्रीज होगा तो एफिनिटी घटेगी और एफिनिटी इंक्रीज हो तो केम बढ़ेगी। तो ये मैम केम वैल्यू बढ़ने पर मतलब एंजाइम का वो रेट बढ़ेगा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म करने में वो कम टाइम लगाएंगे, जिससे कोई प्रोसेस बहुत जल्द होगी। अच्छा, तो ये चीज़ लास्ट वाला चीज़ थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि एफिनिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर, वो जल्दी से एंजाइम के साथ बाइंड कर देगा और रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा। ओके, तो लो मतलब क्या कि लो केम इज बेटर फॉर फास्टर रिएक्शन, लो केम होगा तो एफिनिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। कहने का ये मतलब हुआ कि मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जो पहुंचना था सबको लो केम है, दैट मीन्स कि सबस्ट्रेट का वैल्यू आपका 2 मोल्स पर लीटर ही था, और हाई केम है मतलब कि सबस्ट्रेट का जो वैल्यू था दैट इज 10 है। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट केस में 2 मोल्स पे ही वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जा रहा है, लेकिन हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच रहा है। बट दूसरे केस में क्या हो रहा है कि 10 मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट यूज हो रहा है तब वो पहुंच रहा है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जो रिएक्शन होगा दैट इज फास्टर कंपेयर टू द सेकंड रिएक्शन। इज इट क्लियर? यस मैम। Okay, so this is about KM. I think time is over. मैं ये कहना चाह रही थी कि नेक्स्ट क्लास सेकेंड हाफ में आप लोग के अंतराक्षरी कंपटीशन है आई थिंक, तो आज सेकेंड हाफ की क्लास पोस्टपोन रहेगी, तो मुझे एक और क्लास चाहिए थी आप लोग से, BBC 101 स्टूडेंट आप लोगों से, तो कब आप लोग मुझे एक क्लास और दे सकते हो इस वीक में? अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट मंडे को लूँगी क्लास अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो, बट आई थिंक मंडे से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। कब से आप लोग का एग्जाम है? मंडे से ही हो 27 रहा है ना? 27 हाँ, तो मंडे को क्लास नहीं हो पाएगी, तो इस वीक में आप लोग मुझे एक क्लास दे सकते हो, आधे घंटे की भी क्लास होगी, तो ये बाकी जो एंजाइम काइनेटिक्स है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आपका रहने वाला है। तो आप लोग डिस्कस करके मुझे बता दो, इस वीक में कभी भी आप मुझे आधे घंटा या 45 मिनट जो भी क्लास दे सकते हो, ठीक है? मैम आप फ्री है तो आप ले सकते हैं। कब? थर्सडे को मैम 2:30 to 3:20। 2:20 to 3:20 ओके, आई विल ट्राई। मैं मैसेज करती हूँ आप लोग को, ठीक है, क्योंकि मेरी एक दूसरी भी क्लास है, तो एक बार मैं उन लोग से बात करके एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है? ठीक है, फिर थर्सडे की क्लास फाइनल रहेगी। यस मैम, किसी भी रिएक्शन के वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कैसे मेजर करेंगे? हाँ, मीटर पर सेकंड में यहाँ पे नहीं करेंगे, आप सही कह रहे हो यहाँ पे, लेकिन जनरली अगर हम बात करें वेलोसिटी की बात, तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में ये करते हैं। यहाँ पे मोल्स पर सेकंड हम कह सकते हैं कि कितना मोल्स में वो कन्वर्ट हो रहा है। ओके मैम। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंजाइम, ये स्लाइड्स में आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, आप लोग इसको पढ़ के रखना ताकि ये हम लोग फटाफट टेस्ट को कवर कर ले, ठीक है? ओके मैम। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।